Hello amazing people, thanks for tuning into our channel. This is your host Mahati. And this is Archishman. So this is day 4 in Cambodia and now we are going to the family Lotcha place जिसमें हम लोग lunch करने गए थे. And they are showing their own home manufacturing process, how they make those noodles at home. So all their process is in-house and they invited us to show their whole setup. Yeah, and they asked us to come by 8 o'clock. Time is already 8:15, so let's rush. But you didn't come, so. No, we will come. We got a little late. By the way, good morning. But I'm about to go to school, but You're going to go. You're going I'm to go about to to school. go, but you're here, so we're gonna go to my house. Okay. Thank you. That lady's brother has come here and picked us up. Not picked us up, like picked the kid up, and that's their car, and we are going on our scooter. The pancake that we're making, they put the rice powder, and that one, they put the rice powder in like salt of water, and then last night they were just mix it with the hand, put the chive on the hand, and then we make it circle, Okay. put the rest away, and then put in here. Put grandma, yeah. Hello. Here. The white one is the round, and the square. The green one is the square Those one. are the square. Yeah, but the square one, after we take it out, we cut like a square. So that is rice, Rice, and the that rice. you the, mix it, Yeah. mash it, then that comes out. Yeah, the rice not yet cooked. Okay. The rice cooked is the rice we eat, but that rice not yet cooked. Just washed. Yeah. So that was the process of making the chive cakes and rice noodles. They only manual things and not any machines. तो अपने हाथों से बनाते हैं सब कुछ. So yeah, it was quite an experience. इनके घर आके it was really good. And the kiddo, this kid really, he helped us a lot. My uncle is the first person who sell that rice noodle, and he's the only one that got the most customer every single day. Oh, nice. So Yeah, for me, second generation for the go on with my mother business, and maybe he is third generation. Third generation, okay. अभी हम लोग we are proceeding to the Bantesri temple, but वहाँ जाने से पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी and we did not have the time to eat over there with them. So we stopped at the 7-Eleven. We saw a 7-Eleven on our road. तो 7-Eleven में जाएंगे. यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड मेन्यू है. इंडिया के 7-Eleven से हमको पता है. तो यहाँ से कुछ कॉफ़ी उठाएंगे, खाना उठाएंगे, निकलेंगे. 7-Eleven में मज़ा नहीं आया. ऑलमोस्ट हर चीज़ें ख़त्म है. हम लोग यहाँ पे सामने आंटी के यहाँ से फ्राइड नूडल्स ले रहे. फ्राइड नूडल्स और एग ले रहे. मीट वाला में मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था, तो जस्ट ईटिंग एग एंड नूडल्स. एक्चुअली कल जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे आफ्टर फिनिशिंग द बेयोन टेम्पल, वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस टू ईट सम बाओ. बाओ इज़ बेसिकली, दिखाता हूँ मैं बाद में जो भी, तो जिसका स्टॉल था वो सेम आदमी मुझे यहाँ रोड पर मिल गया. बेसिकली मोटर बाइक पे घूमते हो लोग, एग्जैक्ट सेम आदमी मिल गया और उससे मैंने फिर से उठा लिया. वहाँ से बाओ भी मिल गया है और वो कल वाला ही आदमी था, पता है तेरे को. एंड दिस इज़ आवर नूडल्स. हमने सेफ खेला है, अंडा और फ्राइड नूडल्स लिया. फ्राइड तो नहीं है, मतलब वही अपना ग्रेवी टाइप का.
but फिर भी still looks better than yesterday morning, right? And these are the bows. कल जो हमने bows दिया था, those are white in color, but today I got it in green. Let's see what's the difference. ये बेसिकली ये पूरा डो रहता है, डो स्टीम करते हैं और डो के बीच में मीट रहता है। अब मीट बहुत सारा रहता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिलिंग होता है अच्छा खासा। कॉस्टेड एज अराउंड $2। ठीक है, अच्छा है। $2 तो 160 रुपये का अच्छा ही है यार, इतना कंप्लेन करने का कुछ है नहीं। Okay, so now we have stopped just in front of the Beyond Temple over there, and Beyond Temple का जो मेन एंट्रेंस है, the East Gate I think, वहाँ से सीधा आएंगे तो there is another pyramid temple over there. This is called Baphuon Temple. This is a Hindu temple. I don't know, we have to see inside if it is converted into Buddhism or still the Hindu temple. And if you go to the right, there are some Sarpura temple, some tower temple, and in front of this again 230 meters there is Terrace of Elephants. The Baphuon temple, early 11th century temple, east entrance, but no history of this is mentioned, so let's go inside and just explore. The main temple is over there and this is just the entrance. Just imagine how grand it would have been, है ना? एंड इतना बड़ा है, ऊंचा ऊंचा भी बहुत है, सेम लाइक द Beyond Temple. Yeah. फिर से चिड़िया बोल रही, सीढ़ियाँ है। पता नहीं लोग कहाँ से कैसे चढ़ते थे। पूरा जो स्ट्रक्चर है हर जगह से सीढ़ियाँ। And we have reached the topmost terrace of this temple. So this is how it looks. उसके ऊपर में एकदम टॉप में शायद से गॉड का स्टैचू है। आई डोंट थिंक दीज आर ऑल क्लोज्ड, सो या। एंड दिस लुक्स लाइक सम वाटर स्ट्रक्चर। यहाँ का पानी रह सकता है कि यहाँ से जब भी यू कैन सी द स्टेयर्स ओवर देयर, व्हेन यू एंटर यू वॉश योर फीट ऑटोमेटिकली, देन यू गो अप द स्टेयर्स बैक ऑन टू द एंट्रेंस प्लेस। एंड इतने बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं पूरे स्ट्रक्चर में। आप एक एक जगह पे देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वो बीच में सीढ़ियाँ है। इफ़ यू गो द नेक्स्ट प्लेस, फिर वहाँ सीढ़ियाँ है, चारों तरफ सीढ़ियाँ है। एंड एट द टॉप, एज वी हैव शोन इन द वीडियो, देर आर 4 पिलर काइंड ऑफ थिंग्स। सो कहीं पे भी यू कैन हैव द एंट्रेंस टू द स्टैचू। और अभी हम लोग ये स्कूटी लेके अपोजिट साइड जाएंगे क्योंकि चलने की हिम्मत हो नहीं रही ज़्यादा, कि ज़्यादा चलेंगे ज़्यादा थक। दिस इज़ साउथ खलेयांग टेम्पल। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं अंटिल देर। वहाँ ऑलमोस्ट 10 होंगे, 10 to 12। एंड यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है ये बीच से। सो लेट्स गो इन एंड चेक आउट क्या है। जो अभी पहले वाला मंदिर गए थे, जस्ट उसके ऑपोजिट में वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो दिस इज़ द टेरेस ऑफ द लेपर किंग फ्रॉम लेट 12th century। यहाँ पे कुछ रथ जैसा बना हुआ है, यू कैन सी व्हील्स एंड देयर इज अ सीन ऑफ वॉर काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन ओवर हियर। यू कैन सी हॉर्सेस, men fighting,
शायद महाभारत टाइप का दिख रहा है, बट कांट अज्यूम व्हाट वॉर इज़ दिस। और यहाँ पे यू कैन सी सम क्रीचर्स होल्डिंग द स्ट्रक्चर अबव देम। यहाँ पे गरुड़ देव जैसे है, क्योंकि पीछे विंग्स है, सामने बीक है, नीचे भी विंग्स बने हुए हैं। He is also holding the structure like this. Okay, so this structure beside the terrace of Leper King, it connects to the terrace of elephants. It's a continuous structure like this. We actually didn't know कि ऐसा टेरेस ऑफ लेपर किंग करके एक जगह है। We just went to the opposite temple and वहाँ पे हमको बोर्ड दिखा था कि टेरेस ऑफ लेपर किंग। हमारा प्लान में था ही नहीं। That was the elephant terrace and ये पीछे जो है that is some temple, फेमेनाखास टेम्पल। इसके पीछे रॉयल पैलेस है जिसका भी रेस्टोरेशन चालू है, एंड दिस एक्ट्स एज अ रॉयल टेम्पल, मतलब रॉयल पैलेस का ओन टेम्पल। द एंट्री इनटू द टेम्पल इज़ प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे बहुत लोग आके अपना ऑफरिंग दे दिए। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हालत बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने चश्मा पहन लिया फाइनली। एंड ये हमने कोकोनट मंगाया है, ये एक मंगाया है, एक और माती का आ रहा है। एंड थिंग इज़ वो लोग अंदर क्या बोलते हैं, फ्रिज के अंदर से कोकोनट निकाल के। हाँ, कोकोनट भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। ये देखो इनोवेशन है। एनीवेज लगा देना। ये देखो इसी पे ये सारे। हाँ, ये हमारे मुंबई में स्टेशन के बाहर मिलते हैं। एनीवेज तो इतना ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा एक कोकोनट पानी पियेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ दिस कोकोनट वाटर इज़ $1 पर कोकोनट, तो 86 रुपीज़ एक नारियल का। पर नारियल बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ये मेरा बड़ा सा हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ये चश्मे का बैग लेंगे तो इतना बड़ा तो नारियल है। बैठ के कुछ आधा घंटा टाइम पास किए, बहुत थक गए थे। एंड उसमें से ऑलमोस्ट 1 लीटर जैसा कुछ पानी निकला होगा। 1 लीटर नहीं तो कम से कम आधा लीटर से ज़्यादा ही निकला है। एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू गो डायरेक्टली टूवर्ड्स द बेंटेश्वरी टेम्पल। फ़ोन भी मेरा चार्ज हो गया अराउंड 20%।